Jay. Tula University, please welcome Mr.Varun Badola, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां. You belong to Uttarakhand. Yes, I do. Could you please tell me which village, which district or where exactly? Because here we are in Uttarakhand, so they would love to connect with the roots. गांव ठठोली, ढांगूपट्टी, जिला पौड़ी और वैसे तो उत्तराखंड में हर जगह पे कुछ एक किलोमीटर पे आई हैव अ हाउस और आई हैव अ रिलेटिव हू स्टेज yeah, I've got my base in Kotdwar, just what 97 kilometers from here. And how often you visit Uttarakhand? Just to be here, I mean, as it like as visiting your roots. So coming from a middle class family, going to your hometown was the only vacation that we could afford. So till the age of, I would want to say 15 or 16, it was an addict. At times I think I had to wait 3 to 4 years to come back, but then lately, I think for the last 2-3 years, I've been trying to come here at least once or twice a year. अब तो ऐसा भी है कि मतलब आप जैसे लोग हैं कि बुला भी लेते हैं, so आना जाना ज़रा बढ़ गया है. Otherwise, but even if I have to come on my own, which now really does happen a lot more. Yeah, you have direct flights and quite frequent flight also there. But it really doesn't matter because last time जब मैं आया था तो दिल्ली से अपनी बाइक उठाई और सर 3 घंटे में पहुंच गया था वो. तो वो 3 घंटे में ऐसा नहीं कि वो स्पीडोमीटर ट्रिपल फिगर पे घूम रहा था. इट्स जस्ट दैट I have this tendency of riding from tank to tank. तो आप एक बार पेट्रोल भराइए, टॉप अप करिए, उसके बाद चलाते रहिए. अगली बार जब ज़रूरत पड़ेगी तब आप रुकेंगे कहीं के बीच में. तो ये हम लोग करते रहते हैं. मतलब लास्ट ईयर आई डिड some 30 to 100 kilometers on the bike from Bombay to Sam. We went some 30 kilometers shy of the Pakistan border. फैमिली सपोर्ट मिलता है, ऐसा तो नहीं होगा जरूर आपके साथ. या आपके साथ क्या था? क्योंकि मोस्टली जो हम देखते हैं कि कोई अगर एक्टर बनना चाहते हैं सबसे पहले तो अपने घर से आता है कि भाई क्या है, देयर इज नो सिक्योर, लाइफ इज नॉट सिक्योर. तो आपके वरुण, आपके लिए वो क्या था सिचुएशन जब आप सोचे कि नहीं मुझे एक्टर ही बनना है? So I'll just tell you about my background. आप में से how many of you sitting here have seen this one ad जो Google का था? उसमें 2 aged दोस्त हैं, एक पाकिस्तान में है, एक इंडिया में है. So उसमें जो इंडियन काउंटरपार्ट है, he is my father. Apart from being a political journalist, I think he was probably one of the last people to be the editor of Navbharat Times and Times of India, Lucknow branch at the same time. And apart from that, he was instrumental in the resurgence of Delhi theatre during the 1960s. So, मैं एक्टर क्यों बना तो उसका जवाब ये है because I have it in my blood, or what do you call it? I have the right DNA. And as far as the family support is concerned, when I told them that I wanted to pursue acting, I never, what do you say, there was no resistance from their side. घर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं था? कोई नहीं थी प्रॉब्लम. प्रॉब्लम थी तो सिर्फ एक ये थी कि मुझे दिल्ली में रह के काम नहीं करना था. और वो इसलिए क्योंकि पिताजी का नाम इतना ज़्यादा बड़ा था that everywhere I went,
people were willing to give me work because I was Mr. Badola's son. And life, one thing that I have never enjoyed doing is operating in my comfort zone. So even if you look at my performances, वो हमेशा उसमें एक चीज़ होती है जो कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर खींच के लेकर आए. तो मैंने अपना करियर ही शुरू किया अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से, ताकि मतलब ऐसा नहीं कि बहुत गैरतमंद आदमी हो, और वो आपको कम से कम ये पता चल जाता है कि आपकी एक तो योर जर्नी इज गोइंग टू बी डिफरेंट एंड it is very good for self-evaluation. So that's what I did, and अभी तक तो काम चल ही रहा है. और वरुण, आप जब आए थे जिस टाइम पे आपका एंट्री पर्टिकुलरली टीवी सीरियल्स में हुआ था, और उस टाइम पे एक बिल्कुल नए उमंग, नए जोश के साथ, क्योंकि दूरदर्शन में जो एक टाइप था, पैटर्न था, उससे हट के काफ़ी सारे प्राइवेट चैनल्स आ चुके थे और नए लोगों को बहुत सारे काम मिल रहा था, नए टैलेंट उभर के आ रहे थे. आपके कंटेम्पररी बहुत सारे हैं, आप भी इनफैक्ट टीवी आर्टिस्ट में कल्ट माने जाते हैं. तो थिएटर से ऑफकोर्स जो थिएटर करते हैं, कुछ लोगों का तो है कि हम थिएटर में ही रहेंगे, यही जीना मरना इसी के संग. कुछ जो है किसी भी फॉर्म ऑफ एक्टिंग को आजमाना चाहते हैं. आपके लिए क्या था, टीवी या फिल्म या थिएटर, मतलब किसी भी शाखा में जाना है या किसी पर्टिकुलर एक के साथ ही रहना है, ऐसा कुछ था? देखिए सर, थिएटर करते रहना बुराई कोई नहीं है उसमें, बट फ्रैंकली इंडिया में थिएटर डज नॉट पे. तो आप मज़े के लिए थिएटर कर लें, वो बात समझ में आती है. आप अपना घर नहीं चला सकते थिएटर करके, या अगर चला भी सकते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा होता, मोर ऑफन देन नॉट. जैसे अगर आप NSD में हैं, तो NSD जो है वो बिकॉज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे आप बाकायदा नौकरी कर रहे होते हैं. बट जितने भी एमेच्योर थिएटर ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि यू विल टेक अ साइजेबल अमाउंट होम एवरी मंथ, बिकॉज रिहर्सल्स जो है वो आपको अपने जेब से पैसे डाल के करनी पड़ती हैं. सो टेलीविजन वॉज अ वेरी लॉजिकल ऑप्शन. फिल्म्स में एक्चुअली जब मैं आया भी था तो उस समय भी, और आज तक भी वो है, मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, बट probably it is easier for a few people to get into films because some of their family members are already there, and हम लोग फिल्म्स में एक्सपेरिमेंट करने से बहुत डरते हैं कि किसी भी नए आदमी को चांस देना जो है वो इतना आसान नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली द स्टेक्स आर हायर. एंड अब चूँकि OTT की वजह से जो है एक डाइवर्सिफिकेशन और हुआ है, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ ब्रिलियंट एक्टर्स नाउ कमिंग टू फॉर्म, एंड सो मच सो दैट उनको फिल्म की मोहताजी नहीं करनी. और अब OTT शोज जो हैं उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए. तो उसके भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन सडनली अ लॉट ऑफ very good actors have started getting work, which probably was not possible a few years back. You mean to say that real actors are getting their dues back right now? Real actors, well, there is nothing called a real actor. I mean, उम्दा जो कलाकार जो है, उनको उनकी मन मुताबिक रोल्स अभी मिल रहा है because of OTT. Yeah, so I would say that people who have basically thought about this, who have taken acting as a profession, जिन्होंने एक तरीके से मेहनत की है कि वो you have to invest a lot of time. मतलब आप डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए जो है जितनी मेहनत करते हैं, सो एक्चुअली देखा जाए तो एक्टर बनने के लिए कहीं ना कहीं आपकी वो मेहनत चलती रहती है. सी वी मे नॉट रिहर्स टू मच एज एक्टर्स. जैसे आप किसी बांसुरी वादक को देखिए तो 6-8 घंटे रियाज करता है दिन में, और बाकी और इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले भी इस तरह से करते हैं. एक्टर्स जो है वो पर से उनका रियाज नहीं है कोई फिजिकल जो दिखाई देता है,
लेकिन वो 24/7 अपने रियाज मोड में होता है, बिकॉज यू नीड टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट, यू नीड टू बी क्लूड ऑन। एंड मेरे ख्याल से जितने मेंटल इमोशनल अपहीवल से हम लोग निकलते हैं, कभी कभी जो है पहला सीन आपका एक अलग इमोशन पे है, सेकेंड सीन भी दूसरे इमोशन पे, इवन दैट बिकम्स प्रीटी टैक्सिंग। तो हाँ, अब उन सारे लोगों को काम मिलना शुरू हुआ है जिन्होंने कि ये मेहनत अपने ऊपर ऑलरेडी करके रखी है, मतलब वो हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स टू परस्यू दिस प्रोफेशन। और जैसे आपने बताया है कि एक्टर्स की लाइफ इज लाइक 24/7। आपको फिट रहना है, आपको स्वस्थ रहना है, हमेशा ये जो है मतलब खाना अच्छा खाना है, ऐसे ना हो जाए कि आप बीमार पड़ जाए, कल शूट पे ना जा सके। तो एक डिसिप्लिन जो है इनबिल्ड होना चाहिए किसी भी अच्छे एक्टर के अंदर। हाँ देखिए, एक तो स्वस्थ आपको सिर्फ इसलिए नहीं रहना है क्योंकि कल शूटिंग है, वो इसलिए भी रहना है कि आपके जिंदा रहने के लिए सबसे बड़ी आपको अपने खुद के लिए जिंदा रहना है। सो वो चीज़ तो है। और प्लस अब आपको हिंदुस्तान में तो इतने नहीं, लेकिन वेस्ट में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो आई वाज रीडिंग दिस बुक ऑन रॉबर्ट डे नीरो in I think it was 1979-80 when he started shooting for this. After Taxi Driver, he did Raging Bull. So for Raging Bull, he trained with the Jake LaMotta, who was a boxer, and the film was based on his life. He trained under him for 6 months. And Jake LaMotta says that it's not an exaggeration, but I think De Niro must have been in the top 20 of the world at that time. He became that good. He shot half the film, took a break for 3.5 months, went to France and Italy, because now he had to gain weight. So from a boxer, he had a six-pack. He gained 65 pounds in 3 months, became unrecognizable, came back to shoot the second half of the film, and then the next film that he was doing was called Angels, for which he lost those 65 pounds and more. Did that film, and then did Untouchables, for which he again had to gain weight because he was playing Al Capone. So just imagine the kind of pressure you put on your body, mind, everything. So it is not an easy profession to be a part of. There was this one show that I did recently, my last show on television. I was sitting pretty at 78 kgs. I was asked to gain weight. I went up to 91. In the lockdown for the second half of the show, I came back to 81. Then I did this one show called Your Honor. For that again I had to go back to 78. Then for Cobra I had to go back to 93. And after a certain age, frankly, it becomes more and more difficult to keep losing weight. So yeah, it does take a toll on your body, because not every actor basically has the it's not even a matter of capability, but the luxury of having a team around him or her to help him or her go through this process. True, because when you're off, like for 3 months or something, that someone has to take care of the kitchen also. In essence, you need to get even paid for that, because you are working for your body for that film. Yeah, you're right. See, this is the kitchen part of it is basically, what should I say? You have to keep control over yourself. Personally, like, I don't like to go out very often for parties and all. I hardly ever get out of my house. तो मेरे वो बाकी सारे खर्चे नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हर 2 साल में 6 महीने के लिए काम करता हूँ, फिर 1.5 साल में घर पे बैठता हूँ। सो आप वो 6 महीने काम करके जो है आपको उतना एक्वायर करना है कि आप 1.5 साल में उसके बाद बैठ के और वही पैसा खर्च कर सकें। तो
फिर आपको ये समझना पड़ता है कि नहीं, अगर इस तरीके से काम करना है then you need to put some restrictions upon yourself that you don't go overboard. I open the session for. Absolutely. Do you have any questions? You did a great in CCL from Mumbai Heroes, and you also took so many wickets, and I also saw you in BBL, right? So I just want to know if this interest you found in childhood or later? मुरली कार्तिक 2 साल बाद स्कूल में आया. अजय जडेजा was 2 years senior to me, और कुछ 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स के अलावा दीपदास गुप्ता वाज इन द ऑपोजिट टीम, और उसके बाद हमसे टूर्नामेंट हारने के बाद उसने हमारे स्कूल में ट्यूशन किया था. सरदार पटेल. सरदार पटेल विद्यालय. सो खेलना मिलना तो तब से चल ही रहा था, और वो मैंने अभी भी बंद नहीं किया, क्योंकि एक डिस्ट्रैक्शन एक हमेशा लाइफ में रखना चाहिए इस तरीके का. सो यस, आई डू प्ले अ लॉट स्टिल. Yeah. I remember yesterday night you were talking about sports, and अभी तक आपने बताया कि अपने बात की हैप्पी भी करते रहते. तो of course if you are fit तो कुछ चीज़ तो नेचुरली हो जाता है, पर स्पोर्ट्स तो ऑब्वियसली बहुत सारे एक्टर, जैसा आपने बताया कि बहुत सारे एक्टर जो है दे आर वेरी गुड स्पोर्ट्समैन ऑल्सो. जॉन अब्राहम दे हैव देयर ओन टीम. सो कितने रेगुलरली आप अपने एक्टिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, ये किसी भी, मैंने इतने सारे, जैसे कॉर्पोरेट लीग्स होती हैं, आप किसी भी उसको देख लीजिए, ICICI बैंक की टीम है, HDFC बैंक की टीम है, तो वो स्पोर्ट्स कोटा वाली नहीं है. वो वहीं पर किसी जगह एक मैनेजर है, एक कैशियर है, वो सबने मिला के टीम बनाई है. वो तो रोज काम पे जाते हैं. एक्टर तो रोज काम पे भी नहीं जाते, इनके पास एक्चुअली ज़्यादा समय खेलने का. तो एंड दूसरा क्या है कि जस्ट बिकॉज आप एक्टर बन गए हैं या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में, आप अपनी ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ सकते. तो लाइफ में एक चीज़, मैं आप में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं कल अलग अलग प्रोफेशंस में जाएंगे, इफ आई वुड टू गिव एनी एडवाइस टू एनीवन, आई वुड से एक समय के बाद डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली. अपने ज़िंदगी को जो है अगर इत्मीनान से जीना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लाइफ के फ्लो के साथ अपने आप को आत्मसात करें. सक्सेसफुल होना नहीं होना एक समय के बाद से, इट इज़, आई नो इट्स 99% प्रैक्टिस एंड 1% लक, बट जो एक चीज़ आपके हाथ में है वो अपनी लाइफ को एक सही तरीके से जीना एंड उसको पूरी तरह से एंजॉय करना. सो उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा. प्रॉब्ली हो सकता है कि आप ये बाकी के जितने जिनको सो कॉल्ड डिस्ट्रैक्शंस, अगर आप इन पे ध्यान देते हैं तो शायद अपने प्रोफेशन में आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे. Always be in control of a craft but never use it. So now this sounds like a contradiction, you know, that you have to be in control of your craft but then never use it. Then why learn it in the first place if you don't have to use it? But what it really means is that you, as an individual, as an actor, should use your craft when you are trying to formulate a character, when you are trying to give body to that character. And that I feel is the most difficult part of acting. Execution उतना मुश्किल नहीं होता. आपने एक बार अगर ये तय कर लिया कि आपका कैरेक्टर किस तरीके से बोलेगा, किस तरीके से चलेगा, जब ये सारी की सारी चीज़ें आप एक बार सेट कर लेते हैं तो उसके बाद एग्जीक्यूशन में आपको डायलॉग्स याद करना है, सीन समझना है, स्क्रिप्ट आपके पास पहले से होगी. अगर टेलीविज़न नहीं है तो टेलीविज़न में कभी कभी टेलीकास्ट होने के बाद भी स्क्रिप्ट आ रही होती है, मतलब वहाँ तो अलग हिसाब किताब है. बट for me the most important and the most difficult part is when you are trying to make that character. उसमें आप क्या नुआंसेस डालेंगे, आप
जैसे ग्रीक मैथोलॉजी में कहते हैं कि मतलब हर हीरो के अंदर एक फ्लॉ होना चाहिए, एंड फ्रैंकली कैरेक्टर्स हमेशा वो अच्छे होते हैं जिनके अंदर फ्लॉज हों। तो लेकिन उस फ्लॉ का किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर दिस इज़ व्हाई आई सेड दैट वो ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ जो है यहाँ पे काम आती है कि आप अलग अलग कैरेक्टर्स को उठा के लेकर आए, थोड़ा एक चुटकी इस वाले आदमी की उठाई, एक चुटकी उधर की उठाई, ना बोलो कि आपने कैरेक्टर बनाया, बट या दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट। तो क्यों पसंद करते हैं? इस समय पे यस सर। यार इस समय पे तो वर्ल्ड ओवर एक ही क्रिकेटर है। मतलब जवाब मेरा दे ही दिया इन लोगों ने फ्रैंकली, बट या एज ऑफ टुडे आई थिंक probably Virat is the first बीच में। अब ये एक वैसे सीखने वाली चीज़ है विराट के करियर में कि जब तक ऑस्ट्रेलिया टूर में उन्होंने 100 नहीं बनाया था, 4 साल तक उस आदमी ने स्ट्रगल किया है। फॉर समबडी हु वाज एवरेजिंग 54 or 55, his average dropped down to 48 something in test matches. तो 4 साल का सूखा पड़ा हुआ है पूरा का पूरा। ही लॉस्ट हिज कैप्टनसी। वनडे क्रिकेट में तो चलो ठीक है, थोड़ा फिर रन करने शुरू किए, बट टेस्ट मैचेस में ही वाज स्ट्रगलिंग। फ्रैंकली ही स्टिल नॉट कम बैक टू हिज ओरिजिनल ओन सेल्फ, द ओल्ड सेल्फ रादर, बट स्टिल टू हैव द मेंटल स्ट्रेंथ कि आप उस वक्त को निकल जाने दें, उसके बाद फिर you make a comeback and the kind of comeback he made in that match against Pakistan. रन करना एक चीज़ होती है, लेकिन जब ज़रूरत हो वहाँ पे रन करना, this is why for me Mohinder Amarnath was a great player, Vishwanath sir was a great player। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तेंदुलकर छोटे प्लेयर हैं, वो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब रन करने पे बात आती है तो 4th इनिंग्स की अगर आप टोटल्स उठा के देखें या स्कोर शीट उठा के देखें, वीवीएस लक्ष्मण इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, एंड विराट कोहली डज दैट रिपीटेडली कि आपको मैच जीतना हो तो एक समय तो ऐसा था, मान के चलो 100 ये तो कर रहा है, बाकियों से पूछ लो तुम्हें क्या करता है, तो इसके तो 100 पक्के हैं, बट या आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के जिस माइंडसेट के साथ वो खेल रहा है उससे बेटर कोई बैट्समैन है। थैंक यू सर। Well, can I take one more question? Is there anyone? Good afternoon, sir. Hello. My question is, how did you get started in the film industry, and do you have any advice for aspiring filmmakers, actors or actresses? I have a lot of advisors, frankly. I'm full of advisors. How did I start? So, पहले तो because see, this profession is unlike any other profession. So, खुद को बनाना पड़ता है that are you really willing to take that risk? Frankly, it is a risk. Then you come to Mumbai, rather go to Mumbai and you start finding your feet. I started off as a costume coordinator, and उसके बाद मैं assistant director था। I was an assistant director to Mr. Tula. He's the man who's made Hasil, Charas, and Pan Singh Tomar and all those films. और उनको असिस्ट करने के बाद फिर You have acted also in these films. I acted in Hasil and Charas, yes. So basically एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों के even when I was trying to get into this field, थोड़ा वक्त मिल जाता था आपको अपने ऊपर काम करने के लिए। आज की डेट में what I would advise is that please do not go to Mumbai unprepared. You don't get the opportunity to learn on the job. You need to be prepared. So ये सोच के कि एक दिन आप उठे, आपने शीशा देखा,
सोचा गुरु ये देहरादून में क्या कर रहा है, इसको तो मुंबई में होना चाहिए। तो सिर्फ वैसे उठ के आप ना चले जाए, इट शुड बी वेल थॉट आउट। ये नहीं कि एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करके या कुछ, वो भी एक तरीका है थिएटर करना। थिएटर करने से जो है आपके एक्टिंग स्किल्स और कुछ नहीं होगा तो इम्प्रूव तो होंगे, आपको एक परफॉर्मेंस को होल्ड करना आ जाएगा। इवन एज अ फिल्म मेकर गो असिस्ट समबडी। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं आज भी जो कि आकर पहले लोगों को असिस्ट करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक तो सेट पे रहने का एक जो डिसिप्लिन है वो समझ में आने लगता है। सो अगर इनिशियल कुछ साल जो है आपको कुछ ऐसे काम भी करने पड़ रहे हैं जो कि एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है लेकिन इंडस्ट्री के अंदर ही है, सो ये मत सोचिए कि मतलब आपका करियर कहाँ जा रहा है। देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। तो जब तक कि लोग आप पे कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू नहीं करते हैं तब तक कि आपको वो काम करने पड़ेंगे, बट प्लीज प्रिपेयर वेल बिफोर यू गो टू मुंबई। Thank you, Varun. Thank you so much for being with us, and I'm sure that your advice will make them more stronger, because lot of students, though they are pursuing for very other courses like management or something, but somewhere in their mind or body they wanted to be something else, which they don't want to talk to their parents just now, but मौका आने पे दिखाना चाहते हैं। आजकल वैसे आपको मैं बता दूं कि OTT प्लेटफॉर्म के जो सबसे अच्छे शोज हैं वो इंजीनियर्स बना रहे हैं। मतलब 3 तो IIT ग्रेजुएट्स को मैं जानता हूँ। एक शो अभी रिलीज हुआ है कोहरा, उसके जो शो रनर है कल वो फ्लाइट में साथ ही थे, वो IIT ग्रेजुएट है। D2R फिल्म्स के जो दोनों डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि अभी गंज एंड गुलाम बनाया था, फैमिली मैन भी बनाया, राजन के, तो बहुत पढ़े लिखे लोग इंडस्ट्री में आते हैं। और मतलब सोचो इंजीनियरिंग करना, और उसमें उनका एक अलग डिसिप्लिन है कि जब उनको बैठ के कभी कभी लिखना होता है तो उनको ऑलरेडी आदत होती है 8-8, 9-9 घंटे एक जगह पे बैठ के पढ़ने की। हम तो मतलब मुझे कोई 15 मिनट, मैं थोड़ी देर में अभी हिलना शुरू कर दूंगा ऐसे ऐसे करके, बिकॉज आई एम टू फिजिटी। बट दे आर द पीपल हु एक्चुअली डू वेरी वेल व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एंड conceptualizing projects. So yeah, in fact I've got chartered accountants, friends who have started acting, there are doctors who are acting, lawyers who are, ये मतलब IIT वाले तो नहीं, सब बहुत पढ़े लिखे लोग जो है उन्होंने इंडस्ट्री वाला शुरू कर दिया। Thank you so much. Thank you all. Thank you. Give it